جنت میں جانا بھول جاؤ گے، مدینہ دیکھو گے تو جنت میں جانا بھول جاؤ گے، غلام احمد مختار پہ جردام لکھ دینا، اٹھائے سر جہاں باطل وہاں صدام لکھ دینا، بھگانا ہو اگر وہابی دیوبندیوں کو بس گھر کے دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ لینا، سکون قلب کی خاطر بس اتنا ہی کافی ہے کہ دل کی تختی پہ نبی کا نام لکھ لینا، کہ دل کی تختی پہ نبی کا نام لکھ لینا۔ اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نبی کی شان میں لکھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب یاد آ گئی ہے جوش و رحمت پہ ان کی آنکھ ہے، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، میرے کریم سے کرو قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، آنے دینا ڈبو تو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے باراتی، برخا ربا دیے ہیں ملک فخر کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، وہ سوئے لالا سار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اتنا ہی نہیں میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نبی کی شان میں چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محترم حضرات، واقعی میں مائک آواز کھینچتا ہے، واقعی میں نہیں تو شاہد رضا نوری الحمدللہ ان کے ساتھ بہت پروگرام ہوا ہے میرا، یہ پہلی مرتبہ اس طرح سے مائک ہے، اور میلاد کا پروگرام کو جلسے کا پروگرام کر دیتے ہیں۔ شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ شاہد رضا نوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو برقرار رکھیں، آمین۔ الحمدللہ ان کی آواز ہے ماشاءاللہ، لیکن مجمع نہیں ہے، بہت ہی مختصر ٹائم میں ختم کر دوں گا، اختتام کر دوں گا، اس لیے کہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے وہ بھی بچہ سو رہا ہے، ادھر بھی سو رہا ہے، بچے سو رہے ہیں، ہے نا؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب تم پڑھو، ترجمہ کنز ایمان کر رہا ہوں، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب تم پڑھو جو کتاب تم پر وحی کی گئی نازل کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، سبحان اللہ، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے مسلمان جتنے ہیں، مسلمان لوگ جتنے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، کھانے کی باری آتی تو کھاتے ہیں، پینے کی باری آتی تو پیتے ہیں، کھیت جانے کی باری آتی تو کھیت جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ سب کام ہوتا ہے، لیکن ایک کام نہیں ہوتا جو اللہ کی بندگی ہے۔ 100% میں 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جی صحیح بات، 1% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز فرض عین ہے۔ نماز کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین،
नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्त नमाज छोड़ बैठे हैं, नमाज भूल बैठे हैं। जो लोग नमाज कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, उसके बारे में अल्लाह की जात फरमा रही है, कलाम रब्बानी फरमा रहा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो लोग नमाज छोड़ बैठे हैं, भूल बैठे हैं, जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, उसी के लिए जहन्नम है। वाह, सुभान अल्लाह मत कहिए ना। नमाज पढ़ने वालों को जन्नत मिलेगी जी। नमाज पढ़ने वालों के लिए जन्नत है। जी जी, जो नमाज छोड़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सुस्ती में पढ़ते हैं, सुस्ती करके पढ़ते हैं, टाइम से नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए जहन्नम है। और इसमें आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को एक और नेक बनाए और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमाए। आज हमारे इमाम बेशुमार मौज़ूआत में तकरीर करते हैं, कभी नमाज के मौजू, कभी नमाज के बारे में उन्वान बनाते हैं, कभी नबी की शान के बारे में उन्वान बनाते हैं, कभी गौस और रज़ा की शान में उन्वान बनाते हैं। बेशुमार मौज़ूआत में तकरीर होती है, बयान होता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है, हमारे कान नहीं खुलते हैं, हम अमल नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा कसूर है, हमारी गलतियां यही है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। सही। जिस नमाज को मेरे आका ने फरमाया कि नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, नमाज हमारी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। सब कुछ माँ बहनें करती है, हमारी बहनें सब चीजें करती है, लिपस्टिक लगाती है, झुमका पहनती है, बेसर पहनती है, अपने शोहर को अपने हुक्म के ताबे करती है, सब कुछ करती है। लेकिन मेरे दोस्त, जब आजान की बारी आती है, जब आजान देता है मौसम, जब आजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों फिर भी अमल नहीं करती है, सब कुछ करती है, लेकिन खुदा की बंदगी नहीं करती, खुदा की बंदगी नहीं करती। अल्लाह अकबर। हजरात, मैंने तर्ज़े तकल्लुम को बदल दिया है, वरना अभी मैं 7 समुंदर के पार हो जाता, 7 समुंदर से पार चला जाता, तेज रफ्तार में बोलता। आप सबको समझ में बात नहीं आती, जुमले समझ में नहीं आते, अल्फाज समझ में नहीं आते। हाँ, मैं जहां भी तकरीर करता हूं तो कोशिश करता हूं कि आप लोग समझें। हमारे इस इलाके में खामी है, बहुत बड़ी खामी है, बहुत खताएं करते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। आप नमाज के बारे में हदीस को उठाइए ना, हदीस का मुताला करें, कुरान का मुताला करें। उलमा से तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, नमाज कायम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद पैगंबर हजरत अली फरमाते हैं, शेर खुदा फरमाते हैं, जिसने नमाज को छोड़ दिया अपनी पीठ पीछे अपना इस्लाम को छोड़ दिया। अल्लाह, अपनी पीठ पीछे बहुत बड़ी बात। अपना इस्लाम को छोड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्त, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को ख्वाजा का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को ताजु शरिया का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को आला हज़रत का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को निज़ामुद्दीन का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना कहते हैं, हम अपने आप को सहाबाए किराम का दीवाना कहते हैं, सहाबाए किराम का नारा लगाते हैं, सहाबाए किराम की शान में हम जलसा जुलूस करते हैं, लेकिन हम नमाज पढ़ते। सही बात। सब कुछ करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। हजरात, मैं जलसा का मुखालिफ नहीं हूँ, जलसे में मैं जाता हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, बड़ा बड़ा जलसा में, बड़ी बड़ी महफिल में जाता हूँ, बड़ी बड़ी मजलिस में भी जाता हूँ। यही मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नमाज है, बाद में नारा है, सबसे पहले नमाज है, बाद में आप का कुछ है। समझे? नमाज फर्ज आइन है, नमाज किसी हालत पे माफ नहीं है। हाँ, उज़्र शरई है,
तो इस्लाम ने छूट भी दिया है भाई, हाँ इस्लाम ने छूट भी दिया है। जिसको अगर पेशाब की बीमारी है, टपकता है, पेशाब का मरज है, जो पेशाब का मरीज है, जैसे टपकता है, किसी का पेशाब टपकता है, किसी का पेशाब ज्यादा टपकता है और किसी का पेशाब ज्यादा जारी हो जाता है, वो मसला पूछने आता है मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब। जब उसकी गर्ज पड़ती है तब जाके मसला पूछता है। पहले मसला पूछा करो, पहले आप मसला पूछ लें, इसलिए कि मेरे दोस्त जितनी शरीयत आप पर लागू है उतनी शरीयत एक आलिम पर भी लागू है। बेशक सही बात है। हर किसी पर शरीयत लागू है। मतलब यह है कि आकिल बालिग का होना जरूरी है, आकिल बालिग का होना जरूरी है। अगर छोटा बच्चा घर में है, वो आकिल नहीं, बालिग नहीं, अक्ल वाला नहीं, हद बुलूग तक पहुंचा नहीं है, अगर वो पश्चिम तरफ पेशाब कर रहा है तो आप अगर देख रहे हैं तो वाजिब है कि आप उसकी रूह को मोड़े, फिरा दें, यानी उत्तर जानिब कर दें। और इस तरह से भी उत्तर जानिब ना करें कि जिधर गौसे पाक का मजार हो उधर भी नहीं, उधर भी नहीं। ये शरीयत का मसला है। आज कई लोग हमारे बूढ़े ऐसे ऐसे हैं, हमारे बाप की उम्र के लोग जो मसला मसाइल जानते नहीं है, नहीं है, सही बात, नहीं जानते हैं। ये गांव देहात है, इसलिए मैं समझाने आया हूं मेरे दोस्त। क्यों कि तकरीर करते हैं तो तकरीर का फायदा लीजिए। तकरीर का फायदा मतलब यूं कि अमल कीजिए। आपका इमाम है, आपके मौलवी साहब है, कारी साहब है, हाफिज कुरान है, किसी वजह से पहले जमाने में, पहले दौर में आप नहीं पढ़े हैं तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, अभी भी मसला पूछ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आज आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन उम्र दराज तो हो गई है, लेकिन इल्म बूढ़ा नहीं हुआ है। इल्म सीखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखने के लिए तुम अरब चीन जाओ, वहां भी अगर मौलवी है, आलिम है, इल्म दीन सीखने के लिए जाते हो तो वहां भी जाके सीखो।